बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रो ट्रेनिंग सेशन में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। आज हम जनरली इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि इम्यून सिस्टम बेसिकली है क्या और हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर बना सकते हैं, कैसे अपने इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ताकि हम मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन से बच सकें। प्रॉपर पीपीटी में जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में आपको जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है इम्यून सिस्टम के हवाले से हो जाएगा कि इम्यून सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी में कैसे अपना रोल प्ले करता है। तो आइए देखते हैं वो वीडियो, उसके बाद ये पीपीटी डिस्कस करते हैं। Our body has a powerful army that protects it from various types of threats. These threats can come in the form of mechanical injuries, the entry of germs, or the entry of other foreign particles like dust. This personal army is called the immune system. Every day we encounter a huge number of bacteria, viruses, and other disease-causing organisms. However, we don't fall ill every other day, which is due to our immune system, an army of cells that is always roaming our body, ready to ward off any attack. The immune system can be broadly divided into two parts: innate and adaptive immunity. Innate immunity, or non-specific immunity, is the body's first natural defense to any intruder. This system doesn't care what it's killing. Its primary goal is to prevent any intruder from entering the body, and if it does enter, then the immune system neutralizes this intruder. It doesn't differentiate between one pathogen and another. The first component of this defensive system is our skin. Any organism trying to get into the body is stopped by the skin, our largest organ, which covers us. Secondly, there is the mucous lining of all our organs. The sticky, viscous fluid traps any pathogens trying to get past it. These are the two physical barriers. However, we also have chemical barriers, such as the lysozyme in the eyes or the acid in the stomach, which can kill pathogens trying to gain entry. The genitourinary tract and other places have their own normal flora or microbial community. These compete with pathogens for space and food, and therefore also act as a barrier. The next line of defense is inflammation, which is done by mast cells. These cells are constantly searching for suspicious objects in the body. When they find something, they release a signal in the form of histamine molecules. These alert the body, and blood is rushed to the problem area. This causes inflammation and also brings leukocytes, or white blood cells, which are soldiers in our body's cellular army. Once they come, all hell breaks loose. Sometimes, however, the intruder may not be a germ, but rather a harmless thing like a dust particle. The body still causes a full immune reaction to this intruder, which is how allergic reactions occur. In the fortress of our body, the leukocytes are VIPs. They have an all-access pass to the body, except, of course, to the brain and spinal cord. Our leukocytes come in many types. Those that belong to the innate system are the phagocytes. These cells can either patrol your body, like the neutrophils, or they can stay in certain places and wait for their cue. Neutrophils are the most abundant cells. They patrol the body and can therefore get to a breach site very quickly. These cellular soldiers kill the infectious cell and then die, which leads to the formation of pus. There are also the big bad wolves, or the macrophages. These cells are like hungry, ravenous monsters who simply engulf unwanted pathogens. Instead of roaming freely in our blood, they are collected in certain places. These cells can consume about 100 pathogens before they die, but they can also detect our own cells that have gone rogue, such as cancer cells, and kill them too. Beyond that, we also have the natural killer cells. These cells can efficiently detect when our own cells have gone rogue, or are infected with, say, a virus. NKCs detect a protein produced by normal cells called the major histocompatibility complex, or MHC. Basically, whenever a cell isn't normal, it stops producing this protein. The NKCs move around constantly, checking our cells for this type of deficiency, and when they find an abnormal cell, they simply bind to it, release chemicals, and destroy it. The last cells of our innate immune system are the dendritic cells.
These are found in places that come in contact with the outside environment, such as the nose and lungs. They are the link between our innate and adaptive immune systems. They eat a pathogen and then carry information about it to our adaptive immune system cells. This information is produced and shared in the form of antigens. Antigens are the traces that pathogens leave behind. They are molecules found on the surface of pathogens that can be detected by our adaptive immune system for recognition. The dendritic cells pass on this information to our T cells. However, macrophages can also perform this function. Now, there is also the adaptive or acquired immune system. This system is more efficient as it can differentiate between different types of pathogens. It has two main components, T lymphocytes and B lymphocytes. T cells come into play when an infection has already occurred, thus bringing about the cell-mediated immune response. B cells join the fight when the pathogens have entered but haven't yet caused any disease. This is called the humoral immune response. Some T cells take signals from the dendritic cells or macrophages and are thus called helper T cells. They perform two key tasks, forming effector T cells, which are basically cells that cycle through the body and call in the cavalry, namely other white blood cells. Helper T cells also form memory T cells, which keep a record of this antigen for future reference. Sometimes, some cells of our body know that they have become heavily infected with pathogens, so there is no hope left for them. At this point, the immune system brings out the cytotoxic T cells. These cells rush over and perform a mercy killing for the infected and dying cell. Furthermore, we have the B cells. They produce chemicals called antibodies, which fit on the antigens of pathogens, much like how a lock and key fit together. These antibodies crowd around a pathogen and act like tags. They signal the macrophages to come and kill the marked pathogen. B cells also produce memory B cells when they encounter an antigen. The B and T memory cells jointly maintain a record of all encountered infections, and thus strengthen and solidify the body's immune response to these infections in the future. Our innate response is quicker, though non-specific. It gets into action within hours and is pretty strong. However, when things get out of hand, the innate system calls for help from the acquired immune system. This system can take days to mount a response, but the next time we encounter that pathogen, it won't make us get sick. In short, every day that we spend being healthy is all thanks to our immune system, so it definitely deserves our respect. जी तो डियर मेंबर्स, आपने ये वीडियो मुलाहिज़ा की जिसमें ब्रीफली जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पूरे मुदाफ़ित निज़ाम के इम्यून सिस्टम की एक समरी टाइप जो है वो डिस्कस की कि इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे एंटीजेंस बनते हैं, कैसे एंटीबॉडी बनते हैं और कैसे जो है वो वही एंटीबॉडी उन एंटीजेंस के ऊपर जो है वो अटैक करता है और उन जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज़म्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है या वायरस है, उसको कैसे एलिमिनेट करता है, कैसे निकालता है हमारे जिस्म से। तो अब जो है वो हम ब्रीफली ये सारे मुदाफ़ित निज़ाम के सारे कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे कि मुदाफ़ित निज़ाम के कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे जो है वो हमारे ओवरऑल जो इम्यून सिस्टम है या जो हमारे ओवरऑल फंक्शन परफॉर्म करते हैं इम्यूनिटी का, वो कैसे प्ले करते हैं। कंटेंट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इस प्रेजेंटेशन में आज की, इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी, मुदाफ़ित निज़ाम का मुख्तसरन तारुफ, रोल ऑफ इम्यून सिस्टम, मुदाफ़ित निज़ाम का किरदार कि मुदाफ़ित निज़ाम हमारे जिस्म में कौन सा किरदार अदा करता है, लाइन ऑफ डिफेंसेस, ऐसे कौन से लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं, ऐसी कौन सी रुकावटें हैं जिसको मुदाफ़ित निज़ाम इस्तेमाल करते हुए हमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजन से बचाता है, हाउ इन्फेक्शन, अगर किसी बॉडी में कहीं भी इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, वेज टू ओवरकम इन्फेक्शन, कौन से तरीके हैं उस इन्फेक्शन को ओवरकम करने के, एंड बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम यूजिंग TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए हम कैसे अपने मुदाफ़ित निज़ाम को बैलेंस रख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बेसिकली क्या है, अगर हम अपनी डेली लाइफ स्टाइल में यानी अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के ऊपर गौर करें तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस का सामना करना पड़ता है, और फिर भी उन सारे पैथोजेंस, जिस तरह आप ये सारे पिक्चर्स में देख रहे हैं, सारे वो चीज़ें जिससे हमें तकरीबन रोज़ एक्सपोजर होता है। इन सारी चीज़ों के सरफेस के ऊपर हज़ारों लाखों की तादाद में वायरसेस और बैक्टीरियाज और दीगर जरासीम मौजूद रहते हैं, लेकिन फिर भी हम इन सारे जरासीम की मौजूदगी में हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल अगर गुजार रहे हैं
तो वो किसकी बदौलत है? वो हमारे इम्यून सिस्टम मुदाफ़ती निज़ाम की बदौलत है। हमारे जिस्म में एक ऐसा दिफाई निज़ाम है, एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो हमें इतने सारे वायरस और बैक्टीरिया से हमें बचा रहा है। इट इज़ ड्यू टू आवर इम्यून सिस्टम विच प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड विद पैथोजेंस। ये हमारे मुदाफ़ती निज़ाम की बदौलत है जो हमें इन सारे पैथोजन से बचाता है। अब ये बेसिकली होते क्या है, इम्यून सिस्टम होता क्या है? इट इज़ आर्मी ऑफ सेल्स पेट्रोलिंग इन आवर बॉडी रेडी टू फाइट ऑफ एनी अटैक बाय वायरस, बैक्टीरिया और एनी अदर पैथोजन। ये बेसिकली सेल्स होते हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो हमारे पूरे जिस्म में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं एंड रेडी टू फाइट ऑफ एनी अटैक, और हर वक्त तैयार रहते हैं किसी भी वायरल या बैक्टीरिया अटैक को काउंटर एक्ट करने के लिए। तो इन शॉर्ट अगर हम मुख्तसरन तारुफ करें इम्यून सिस्टम का तो वो कैसे होगा? अ डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस। हमारे जिस्म का, हमारी बॉडी का वो डिफेंसिव मैकेनिज्म, वो दिफाई निज़ाम जो क्या करता है, विच प्रोटेक्ट अस, जो हमें बचाता है फ्रॉम डिफरेंट पैथोजेंस, मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेन से। अब पैथोजेंस क्या हैं? पैथोजेन वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर सकती हैं, हमारी बॉडी में बीमारी फैला सकती हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? देख में भी वायरस, वो वायरसेस हो सकती हैं, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे अवामिल हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकती हैं। तो ओवरऑल कलेक्टिवली हमारे जिस्म का वो निज़ाम जो हमें मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाता है, उसको हम मुदाफ़ती निज़ाम कहते हैं। रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। अब इसका किरदार क्या है? हमारे इम्यून सिस्टम का क्या किरदार है? सबसे पहले डिफेंस, दिफा, यानी हमारे जिस्म का क्या करता है? दिफा करता है। किस चीज़ के ख़िलाफ़? वायरस के ख़िलाफ़, बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़, टॉक्सिन्स के ख़िलाफ़, या जो दीगर हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के म्यूटेटेड सेल्स बनते हैं उनके ख़िलाफ़ हमारे जिस्म की दिफा करता है, हमारे जिस्म को बचाता है। दूसरे नंबर पे ऑटो टॉलरेंस, खुद शनासी। हमारे मुदाफ़ती निज़ाम का एक किरदार ये भी है, एक रोल ये भी है कि उसे खुद शनासी हो, उसे सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन्स का पता हो। इसे पता होना चाहिए कि हमारे अपने बॉडी के सेल्स, अपने बॉडी के कंपोनेंट्स कौन से हैं और फॉरेन एंटिटीज़ कौन सी हैं, बाहर से कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, बाहर से कौन से वायरसेस आए हैं, कौन से बैक्टीरियाज आए हैं। तो इसके जो है वो ऑटो टॉलरेंस हो, खुद शनासी हो, क्योंकि बाज़ों का जब इम्यून सिस्टम प्रॉपर नहीं होता, बैलेंस नहीं होता, तो वो अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर जो है वो अटैक करना शुरू कर देता है। वो इससे में क्या होता है कि ये वाला रोल जो है वो उसका लॉस हो जाता है, ऑटो टॉलरेंस फिर उस इम्यून सिस्टम में नहीं रहती। इसके बाद जो तीसरा इसका रोल है वो क्या है? इम्यून सर्वेलेंस। ये निगरानी करता है, इम्यून सर्वेलेंस करता है हमारे पूरे जिस्म के मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, इम्यून सेल जो हमारी बॉडी में पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, और जहाँ कहीं भी वायरस या बैक्टीरिया उसको नज़र आता है वो उसको किल करते हैं और ख़त्म करते हैं। लाइन ऑफ डिफेंसेस। अब आते हैं कि ऐसे कौन से लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं, ऐसे कौन से बैरियर्स हैं, ऐसे कौन से अवामिल हैं, फैक्टर्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हमारा मुदाफ़ती निज़ाम हमें इन सारे वायरस और बैक्टीरिया से बचाता है। सबसे पहले क्या है? फ़िज़िकल बैरियर। फ़िज़िकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन शामिल है। हमारी जो स्किन है ये बेसिकली एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है वायरस और बैक्टीरियाज के लिए। जब भी कोई वायरल या बैक्टीरिया अटैक करता है तो हमारी जो स्किन है ये हमें सबसे पहले बचाता है। उसके बाद अगर खुदा न खास्ता अगर पहला बैरियर फेल हो जाए, उसके बाद दूसरा बैरियर होता है जिसे केमिकल बैरियर कहते हैं। केमिकल बैरियर में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स पाए जाते हैं जो केमिकली उन सारे वायरसेस बैक्टीरियाज को किल करते हैं। तो केमिकल बैरियर हमारा दूसरा बैरियर होता है। तीसरे नंबर पे एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, विच इज़ परफॉर्म बाय मास सेल्स विच पेट्रोल इन द बॉडी वेयर एवर दे सी सस्पिशियस एक्टिविटी दे रिलीज सिग्नल विच अट्रैक्ट द ल्यूकोसाइट टू द इन्फ्लेम साइट एंड न्यूट्रलाइज द पैथोजन ओवर देयर। इन्फ्लेमेशन प्रोसेस एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पेट्रोलिंग करते हैं, जहाँ कहीं भी उनको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नज़र आती है वो वहाँ पे जाते हैं, सिग्नल रिलीज़ करते हैं। बाकी जो WBCs के सेल्स हैं, मुदाफ़िक निज़ाम के जो बाकी सेल्स हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं और कलेक्टिवली जो है वो उस वायरस उस बैक्टीरिया को किल करते हैं। ये बेसिकली 3 बैरियर्स हैं हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी इस्तेमाल करता है वायरस और बैक्टीरिया की एंट्री को रोकने के लिए। अब हाउ इन्फेक्शन अकर, इन्फेक्शन कैसे होता है? सबसे पहले इन्फेक्शन है क्या? इन्फेक्शन इज द इन्वेजन ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजन टू द ह्यूमन बॉडी, देयर मल्टीप्लिकेशन एंड द रिलीज ऑफ
वेरियस टॉक्सिन बाय दीज एजेंट्स। सबसे पहले क्या होता है कि इन्फेक्शन में बेसिकली वायरल और बैक्टीरियाज की एंट्री होती है हमारे जिस्म में। वायरस और बैक्टीरिया एंटर होते हैं, एंट्री के बाद वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद वो मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं। वही टॉक्सिन्स जो है वो फिर हमारी बाकी बॉडी पार्ट्स को डैमेज करता है। तो ये पूरा जब इस तक प्रोसेस मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स रिलीज़ हो जाए, बैक्टीरिया वायरल ग्रोथ हो जाए, पूरे जो वायरस है वो हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाए, तो इसको कहते हैं इन्फेक्शन। इस केस में इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये इन्फेक्शियस एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? ये वायरसेस भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ अक़साम हैं वायरस की, कोरोना वायरस, एबोला वायरस, कांगो वायरस, डेंगू वायरस। हर वायरस जो है वो मुख्तलिफ बीमारियाँ कॉज करता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, इकोलाइस, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह, और भी बहुत सारे बैक्टीरिया की अक़साम हैं। इसके अलावा फंजाइज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के वर्म्स होते हैं। ये सारे जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं। वहाँ पर जाके ये बॉडी इनकी जो अपनी ग्रोथ करता है, ग्रोथ के बाद ये मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं और फिर उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। अब ये इन्फेक्शन कैसे होता है? होस्ट कैन फाइंड ऑफ दीज इन्फेक्शियस एजेंट बाई फॉलोइंग वेज। जब कभी भी किसी बॉडी के ऊपर वायरल या बैक्टीरिया अटैक करने की कोशिश करता है, तो जो होस्ट है, हमारी बॉडी है, उसको 3 तरीक़ों से काउंटरएक्ट करती है, उस अटैक को रोकती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन है, हमारी जो स्किन है वो उसको रोकने की कोशिश करेगी। दूसरे नंबर पे लाइसोजाइम जो केमिकल बैरियर हमारा है, वो केमिकली वायरस और बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करेगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है वो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है। वही इन्फ्लेमेशन जो हमने शुरू में डिस्कस किया, पूरा प्रोसेस होता है और ओवरऑल उसका गोल क्या होता है, टारगेट क्या होता है कि वो उस वायरस और बैक्टीरिया को किल कर सके, ख़त्म कर सके। When all the above mechanisms fail to overcome the pathogens, so the pathogen cause different diseases and the person become infected. जब ये ऊपर वाले बैरियर, सारे बैरियर फेल हो जाए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो जाए, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो जाए और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी फेल हो जाए, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है, बंदा जो है वो इन्फेक्ट हो गया है। अब अगर किसी बंदे को इन्फेक्शन हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, उसको ओवरकम कैसे करना है? देयर आर 2 ways टू ओवरकम इन्फेक्शन। 2 तरीके हैं इन्फेक्शन को ओवरकम करने के लिए। यूजिंग, सबसे पहले यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिकेशन दैट किल द पैथोजन, एंड सेकेंड इज़ नेचुरल वेज टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम। पहला तरीका तो ये है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेडिकेशंस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीवायरल एजेंट्स हैं, उसका इस्तेमाल किया जा सके। वो मेडिकेशंस क्या करती हैं? वो मेडिकेशन जो है वो उस वायरस और बैक्टीरिया को किल करती हैं, या तो किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को रोकती हैं। दूसरा जो तरीका है वो नेचुरल वे टू इम्प्रूव आवर इम्यून सिस्टम। हम अपने मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर बनाएं। इन्फेक्शन क्यों होता है कि हमारा मुदाफ़ित निज़ाम फेल हो जाता है, पहला बैरियर भी फेल हो जाता है, दूसरा भी बैरियर भी फेल हो जाता है और तीसरा भी बैरियर फेल हो जाता है। तो जो दूसरा हमारा तरीका है उसमें ये हम कर सकते हैं कि हम अपने मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर बनाएं, उसको इम्प्रूव करें ताकि वो फेल ना हो। इम्यून सिस्टम फेल नहीं होगा। फर्स्ट इम्यून लाइन ऑफ डिफेंस हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा, सेकंड डिफेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, थर्ड डिफेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो वो वायरस और वो बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी इफेक्टिवली उसको काउंटरएक्ट कर सकती है। तो ये 2 तरीके हैं। सबसे पहले यूजिंग मेडिकेशन टू किल पैथोजन। पहला तरीका जो मेडिकेशंस का है, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिकेशन इस्तेमाल होती हैं, एंटीवायरल एजेंट्स, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो मेडिकेशन इस्तेमाल होती हैं उसको बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल कहते हैं। जो वायरस के ख़िलाफ़ जो एजेंट्स इस्तेमाल होती हैं उसको एंटीवायरल एजेंट्स कहते हैं। तो वो इस मेडिकेशंस तो इस्तेमाल होती है, लेकिन इन मेडिकेशंस को इस्तेमाल करने के साथ साथ इसके इस्तेमाल करने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो हमें पता नहीं होता मुख्तलिफ़ के कौन सी किस कंडीशन में जो है वो एंटी वायरल देना है। जो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटी वायरल या एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं उसके साथ मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स आजकल जो हैं वो रेजिस्ट हो गए हैं, यानी वो हम जो आजकल के जो न्यू स्ट्रेन्स हैं वायरल और बैक्टीरियल स्ट्रेन्स उसके अगेंस्ट इफ़ेक्टिव नहीं हैं।
दूसरा जो तरीका है नेचुरल वेज टू इम्प्रूव टू बैलेंस आवर इम्यून सिस्टम। दूसरा जो तरीका जो मैंने डिस्कस किया वो हमारे इम्यून सिस्टम का है कि हम अपने मुदाफ़िती निज़ाम को बेहतर बनाएं ताकि वो क्या हो, फेल होने से बच जाए, वो इफ़ेक्टिवली खुद ही उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को ख़त्म करे। हमारा जो अपनी जो एंटीबॉडीज़ हैं या जो हमारी इम्यून सिस्टम का जो फोर्स है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो उस वायरस और उस बैक्टीरिया को ख़ुद किल करे, ख़ुद ख़त्म करे, ताकि हमें जो है वो इस जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल एजेंट्स हैं इनकी ज़रूरत ना पड़े। अब TCM की फ़िलासफ़ी को, बैलेंसिंग इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी यूजिंग TCM अप्रोच, TCM की फ़िलासफ़ी को इस्तेमाल करते हुए हम अपने मुदाफ़ित निज़ाम को बैलेंस रख सकते हैं। TCM की फ़िलासफ़ी जो है वो 3 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग। क्लिनजिंग जो है वो सबसे पहले हमारी बॉडी की क्लिनजिंग होती है। क्लिनजिंग में क्या होता है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो सारे हमारी जिस्म से निकाले जाते हैं। दूसरे नंबर पे रेगुलेटिंग की कैटेगरी होती है। रेगुलेटिंग में वो सारे प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जो हमारे बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स की रेगुलेटिंग कर रहे होते हैं। ऐसे सिस्टम जो लो लेवल पे काम कर रहे हैं या जो कमज़ोर है तो उनकी फंक्शनिंग को बेहतर बनाया जाता है ताकि वो इफ़ेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करें। और तीसरे नंबर पे रिप्लेनिशिंग में वो सारी चीज़ें, वो सारे सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी रिप्लेनिशिंग कर रहे होते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं ये इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते जाएंगे। मकसद आज की ट्रेनिंग का क्या था कि आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया जाए इम्यून सिस्टम के हवाले से, मुदाफ़िती निज़ाम के हवाले से, कि इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या है और ये कैसे जो है वो हमारी हमें बचाता है मुख्तलिफ़ किस्म के वायरसेस से और मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेन से। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो ट्रेनिंग्स होंगी उसमें हम मोस्टली अपने सप्लीमेंट्स जो है वो डिस्कस करेंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम से हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं, मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।